Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is assessment of teaching proficiency, criteria, tools and technique. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ शिक्षण प्रवीणता का आकलन यानी तरीके, उसके तकनीक और उपकरण के बारे में. The particular topic related to M.Ed semester 3 and paper number 9B unit number 3. शिक्षण प्रवीणता, teaching proficiency in the sense that means only you have to identify or to emphasize the mode of teaching pattern and how you have to assess your teaching pattern in a best way. शिक्षण प्रवीणता अर्थात शिक्षण की ऐसी तरीका, ऐसा आधार जिसमें कि आप स्वयं का आकलन कर सके. प्रवीणता कहने का तात्पर्य यह है आपके शिक्षण की दक्षता. इसके अंतर्गत भी बहुत सारे विभिन्न टूल्स, कुछ ऐसे उपकरण हैं, कुछ टेस्ट हैं जिनका कि प्रयोग सही तरीके से आकलन करने में किया जाता है. पर एक बात स्पष्ट है कि शिक्षक को अपने शिक्षण प्रवीणता को जानने समझने का सबसे बड़ा फायदा उसकी अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलती है. दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी टीचर में इन्हांस, स्वयं वो कर सकते हैं द टीचिंग एबिलिटी एंड ऑल्सो द क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लर्नर के लिए, दैट मीन्स सीखने वाले के लिए तो फायदेमंद ही है, साथ ही साथ शिक्षक के लिए भी ये फायदा हो सकता है. इसके विभिन्न जो अलग अलग टूल्स हैं वो सारे टूल्स शिक्षक को मदद करते हैं. साथ ही शिक्षक अपने छात्रों में जो अपनी पूर्ण विवेक के साथ जो शिक्षा देते हैं, जिससे कि उनकी प्रवीणता यानी उनकी जो दक्षता दिखाई पड़ती है, उस टूल्स का प्रयोग करके उससे और अधिक उपयोगी और सार्थक बना सकते हैं. स्पष्ट है कि यह महत्वपूर्ण है और शिक्षक के विकास के लिए अति आवश्यक है. शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए, शिक्षक के प्लान के लिए, योजना के अनुसार और शिक्षक की गुणवत्ता के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है. मैं अब आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ. Now again welcome to video lecture class M.Ed semester 3 paper number 9B secondary and higher secondary education. Assessment of teaching proficiency, criterion, tools and techniques. In education, the term proficiency is used in a variety of ways, most commonly in reference to number 1 proficiency levels, skills and cutoff scores on standardized tests and other forms of assessment. Student achieving or failing to achieve proficiency level determined by test and assessment. Number 3 students demonstrating or failing to demonstrate proficiency in relation to learning standards. For a related discussion, see proficiency based learning. And number 4 teacher being deemed proficient or non-proficient on job performance evaluations. Now, teaching proficiency is based on an evaluation can be used by teachers to guide their own profession's development, by mentors and school administrators to assess teacher proficiency, and to plan and provide professional development to individuals and to the whole school by State Department of Public Instruction to monitor teacher preparation program, and by teacher preparation program to design and improve their curricula in relevant courses. Now, criteria for assessing teacher proficiency of teacher. Number 1 stated objective of the assessment system are feasible given the size of the task, the number of teachers evaluators, the amount of behavior to be assessed and the time allotted. Number 2 validity of item selection. An inventory of teacher proficiencies should be depicts the reportier of a proficient teacher, what proficient teachers say to describe and explain and do to plan, organize and deliver assess
Proficiency should be defined by scientific research and by outcomes elaborate. That is, A. Items should be supported by experimental research showing that the item are associated with student achievement. B. Teachers who plan, organize, deliver, assess, describe and explain their practices a certain way should be teachers whose students learn more faster and with greater ease than teachers who do not plan, organize, deliver, assess, describe and explain a different ways. Now, coverage of the knowledge system, teaching proficiency. No instruments can be measures every single skill or bit of knowledge that defines proficiency. Rather, the sample must include essential skill and knowledge of the kind that are either necessary for student achievements, ego, teaching pre-skill elements before teaching complete skill that require those elements and providing a warm and inviting classroom environment bracket close or that facilitate it. Now, criterion tools and techniques. Many of, not all states now has a systems in bracket methods and procedures bracket close for assessing, rating and improving teacher utility. Next point, in addition, there are several commercial or privately developed systems for assessing, rating and improving teacher utility. Next point, however, for the current strong interest in accountability to be of much benefits, methods for assessing teacher proficiency must be number 1 valid, that is representative, predictive and useful; feasible, that is can be accomplished effectively and efficiently; number 3 acceptable, that is will be done willingly and faithfully; and number 4 sustainable, that is will be repeated. Now, on the above on the basis of above indication, validity in the sense that means divided into four groups: content validity, how well or our test sample represents the universe or criterion behavior; number 2 concurrent validity, how closely test scores are correlated with present criterion behavior; number 3 predictive validity, how well test scores predict future criterion behavior; and constructive validity, how well our test seems to measure a hypothesized traits. Now, tools and techniques. The term observational tools and techniques are not synonymous, although they are used interchangeably by many persons. An observation technique generally implies that use of a particular observational tool such as rating scale, a checklist, etc. However, the process of observing and recording an individual behavior, what is meant by the phrase observational technique. Next point, it is expected that the observer should be completely objective and record the actual behavior without attempting to synthesize or interpret behavior. Now, number 1 checklist. A checklist consists of a listing of steps, activities, or behavior which the observer records when an incident occurs. It is similar and in appearance and used to a rating scale and is classified by some as a type of rating scale. A checklist enables the observer to note only whether or not a trait or characteristics is present. Now, another rating scale, in the sense that means the another observational tools. Rating scales resemble checklist but the used when finer discriminations are required instead of merely indicating the presence or absence of a trait or characteristics. It enables us to indicate the degree to which a trait is present. Rating scale measures specified outcomes or objective of education deemed to be significant or important to the teacher. Now, next, questionnaire or inventories. A questionnaire is a list of
planned written question related to a particular topic or series of topic. A space is provided for reply to each question. Now, achievement test. Achievement tests are the most frequently used evaluation tools in educational setting belonging to prepare and pencil category. Achievement tests are frequently employed to check and attainment of minimum performance of a student. Now, next one, oral test. It helps to testing the previous knowledge of the student. Based on the previous knowledge, the teacher may easily impart the new knowledge. Now, written test. The test in which the student respond to the teacher in writing is called a written test. It gives us most stable, reliable and valid type of evaluation. Now, performance test. The test which measure the performance of a student in psychomotor task is known as performance test. The process of performance of any psychomotor act involves doing with correct speed, doing with required accuracy. Performance test helps the teacher to know the weakness of a student in performing the given task. Now, अब मैं सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। शिक्षण प्रवीणता का आकलन, तरीके, उपकरण और तकनीक। शिक्षा में प्रवीणता शब्द का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। सबसे अधिक जो शिक्षण प्रवीणता के संदर्भ में है, नंबर 1, प्रवीणता के स्तर, तराजू और कट ऑफ स्कोर मानकीकृत परीक्षणों और अन्य रूपों पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 2, परीक्षण और आकलन द्वारा निर्धारित दक्षता स्तर हासिल करने में असफल रहने वाले छात्र, या नंबर 3, सीखने के संबंध में प्रवीणता प्रदर्शित करने में असफल या प्रदर्शन करने वाले छात्र मानक संबंधित चर्चा के लिए प्रवीणता आधारित शिक्षा इत्यादि को देख सकते हैं। तथा अंत में नंबर 4, शिक्षकों को नौकरी प्रदर्शन के मूल्यांकन पर कुशल या गैर कुशल माना जा रहा है, इस आधार पर भी इसे देखा जा सकता है। शिक्षण प्रवीणता एक मूल्यांकन पर आधारित है। शिक्षकों द्वारा अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है। शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों द्वारा शिक्षक दक्षता का आकलन करने के लिए और व्यक्तियों या विद्यालयों के लिए, पूरे विद्यालयों के लिए व्यावसायिक विकास की योजना बनाना और प्रदान करना। शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए सार्वजनिक निर्देश के राज्य विभागों द्वारा और उनके पाठ्यक्रमों को डिजाइन और सुधारने के लिए शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों द्वारा प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में शिक्षक की दक्षता का आकलन करने के लिए मानदंड। नंबर 1, शिक्षकों मूल्यांकनकर्ताओं मूल्यांकन की जाने वाले व्यवहार की मात्रा और आवंटित समय मूल्यांकन प्रणाली के लिए स्थिर उद्देश्य कार्य की संख्या को देखते हुए संभव होता है। नंबर 2, योजना चयन की वैधता। शिक्षक प्रवीणता की एक सूची प्रदर्शनों की सूची को चित्रित करना चाहिए। प्रवीण शिक्षक क्या कहते हैं, वर्णन करने और समझाने के लिए आवश्यक होना चाहिए और उसे करते हैं। योजना के लिए व्यवस्थित करते हैं, वितरित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। प्रवीणता को वैज्ञानिक अनुसंधान और विस्तृत परिणामों से परिभाषित किया जाना चाहिए, अर्थात वस्तुओं को प्रायोगिक अनुसंधान द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, यह दिखाते हुए कि आइटम यानी जो योजना का संबंधित कार्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि भी उसमें शामिल होती है। बी, ऐसे शिक्षक जो अपनी प्रथाओं का नियोजन, आयोजन, वितरण और मूल्यांकन और उसका वर्णन और व्याख्या करते हैं, उनके तरीका शिक्षकों का उनका विशेष तरीका या कह सकते हैं कि शिक्षकों का होना चाहिए जिनके छात्र अधिक तेज, या उन शिक्षकों का यह तरीका होना चाहिए जिनके छात्र अधिक तेज और शिक्षकों की तुलना में अधिक आसानी से सीखते हैं, जो विभिन्न तरीकों से योजना, आयोजन, उदार, आकलन, वर्णन और व्याख्या नहीं करते हैं। ज्ञान प्रणाली, प्रवीणता सिखाना। कोई भी उपकरण प्रवीणता को परिभाषित करने वाले हर एक कौशल या ज्ञान को माप नहीं सकता, बल्कि नमूने के तौर पर या एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि आवश्यक कौशल और ज्ञान शामिल होना चाहिए। इस प्रकार का छात्र की उपलब्धि के लिए आवश्यक यानी अहंकार पूर्ण कौशल सिखाने से पूर्व और पूर्ण कौशल तत्वों को पढ़ाना, जो तत्वों की आवश्यकता होती है या एक आमंत्रित कक्षा वातावरण प्रदान करते हैं ब्रैकेट क्लोज, या जो इसे सुविधाजनक बनाते हैं।
मानदंड, उपकरण और तकनीक। शिक्षक उपयोगिता में सुधार हेतु सभी राज्यों में अवमूल्यांकन रेटिंग के लिए एक प्रणाली यानी तरीके और प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा मूल्यांकन के लिए कई व्यावसायिक या निजी रूप से विकसित प्रणालियां हैं, जैसे रेटिंग और शिक्षक उपयोगिता में सुधार करना। शिक्षक दक्षता, हालांकि मौजूदा उनकी मजबूत हित के लिए बहुत लाभ और तरीकों के लिए आधार पर आकलन करना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 मान्य यानी प्रतिनिधि, भविष्य कहने वाला और उपयोगी होना चाहिए। संभव यानी प्रभावी और कुशलता से पूरा किया जाना चाहिए। स्वीकार्य यानी स्वेच्छा से और विश्वासपूर्वक किया जाना चाहिए। अस्थायी यानी दोहराया जाना चाहिए। अब ऊपर बढ़े 4 तथ्यों के अनुसार, जो कि वैलिडिटी या प्रैक्टिबिलिटी या रिलेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी के अनुसार मैंने बताया। नंबर 1 सामग्री वैधता, हमारा परीक्षण नमूना कितना अच्छी तरह से मानदंड व्यवहार के ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा समवर्ती वैधता, वर्तमान मानदंड व्यवहार के साथ निकटता से कैसे स्कोर किए जाते हैं। नंबर 3 भविष्यवाणी वैधता, भविष्य की कसौटी व्यवहार की भविष्यवाणी कितनी अच्छी तरह से होती है। रचनात्मक वैधता, परिकल्पित विशेषता को मापने के लिए हमारा परीक्षण कितना अच्छा होता है या कितना अच्छा लगता है। उपकरण और तकनीक, अवलोकन, उपकरण और तकनीक शब्द समानार्थक नहीं है, हालांकि उनका उपयोग बहुत से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। एक अवलोकन तकनीक का आमतौर पर मतलब है कि विशेष रूप से अवलोकन उपकरण जैसे रेटिंग स्केल, एक चेकलिस्ट इत्यादि का एक उपयोग करना चाहिए। हालांकि तकनीक की प्रक्रिया और अवलोकन साथ ही साथ रिकॉर्डिंग और व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन, वाक्यांश से क्या मतलब है इस पर ध्यान होना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि पर्यवेक्षक पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठ आधारित होना चाहिए और व्याख्या व्यवहार के संश्लेषण के प्रयास के बिना वास्तविक व्यवहार को रिकॉर्ड करना चाहिए। सूचियों की जांच करें यानी चेकलिस्ट। एक चेक सूची में चरणों, गतिविधियों या व्यवहार की सूची होती है जो पर्यवेक्षक रिकॉर्ड करता है। एक घटना होती है, यह देखने में समान है और रेटिंग पैमाने पर उपयोग करता है, कुछ के द्वारा वर्गीकृत भी किया जाता है। नंबर 2 रेटिंग स्केल, रेटिंग तराजू यानी स्केल जिसको कि चेक करने के लिए हम उपयोग करते हैं, सूचियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन जब महीन यानी बहुत बारीक भेदभाव की आवश्यकता होती है तो इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। किसी विशेषता या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति का संकेत देने के लिए यह हमें संकेत करने में सक्षम बनाता है और वह अंश जिसके लिए कोई गुण मौजूद है। प्रश्नावली एक विशेष विषय या श्रृंखला से संबंधित नियोजित लिखित प्रश्नों की एक सूची है या सूची आधारित विषय पर निर्भर करती है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए स्थान प्रदान किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण, शैक्षिक परीक्षण में उपलब्धि परीक्षण सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण है। कागज और पेंसिल श्रेणी से संबंधित है। छात्रों के न्यूनतम प्रदर्शन की जांच और प्राप्ति के लिए उपलब्धि परीक्षण अक्सर नियोजित किए जाते हैं। मौखिक परीक्षा यह छात्रों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करने में मदद करता है। पिछले ज्ञान के आधार पर शिक्षक आसानी से नए ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। लिखित परीक्षा, यह परीक्षण जिसमें छात्र लिखित रूप से शिक्षक जवाब देते हैं लिखित परीक्षा कहलाता है। यह हमें मूल्यांकन का सबसे स्थिर, विश्वसनीय और मान्य प्रकार देता है। प्रदर्शन का परीक्षण, साइकोमोटर कार्यों में छात्रों के प्रदर्शन को मापने वाले परीक्षण को प्रदर्शन का परीक्षण कहा जाता है। किसी भी साइकोमोटर अधिनियम के प्रदर्शन की प्रक्रिया में शामिल है, जैसे सही गति के साथ कर्म करना, आवश्यक सटीकता के साथ करना। प्रदर्शन परीक्षण शिक्षक को दिए गए कार्यों को करने में छात्रों की कमजोरी जानने में भी मदद करता है। इस प्रकार से जितने भी परीक्षण यानी जितने भी तरीके बताए और उपकरण या जो उसके तरीके बताए गए वो प्रवीणता के शिक्षक की जो शिक्षण की प्रवीणता है उसके बारे में स्पष्ट करते हैं और व्यवहार को भी स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षण की प्रवीणता है शिक्षक को विकसित करने में मदद करती है।
इस प्रकार से मैंने ये टॉपिक को समाप्त किया। अगले क्लास में मिलते हैं यूनिट 4 के, जो कि 9B का टॉपिक है, यूनिट 4 से संबंधित टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।